Good morning friends. So in the last video we had learned about solutions, its types and concentration of solution. Now in this video we will learn about the units of concentration of solution. As I said in the last video, there are 10 units for the concentration of solution, and we have already learned 5 units in standard 11 and 5 units we are going to learn in standard 12. But as I said, we will cover up all 10 units here in this video. So let's start with first one. First one is number of moles. Okay, number of moles, इसका फॉर्मूला होगा weight divided by molecular weight. Or you can say mass divided by molar mass. Second one is molarity. First of all, we will write the definition of molarity. The definition is number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is known as molarity. जितने number of moles solute के आप solution में 1 liter solution में dissolve करोगे वो हो जाएगा आपकी molarity मिलेगी आपको. Okay, define लिख लेते हैं. Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. It is denoted as capital M. ठीक है, सिंबल इसका कैपिटल M होगा. Now we will write its formula. Molarity is equals to number of moles divided by volume of solution. This is its first formula. The second formula we can write as W2 upon M2. This is the formula of number of moles. You can also write here W2 means weight of solute divided by M2 means molar mass of solute. So W2 upon M2 divided by volume of solution. Volume of solution will be V. We will write it as V. You can also write here that number of moles of solute. ठीक है, पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स किसके लेने हैं आपको, सॉल्यूट के लेने हैं, और वॉल्यूम किसका लेना है, सॉल्यूशन का. So this is the second formula. Here we will write volume in liters. But in question, if the volume is in milliliters, we will write it as W2 upon M2. Volume is in milliliters. If it is in milliliters, you have to write 1000 here to balance out. That means we have to convert milliliters into liters. For that we have to divide it by 1000. Alright, so the second unit of concentration, that is molarity, it gets complete here. We will move to third unit, that is formality. Now what is formality? So number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution as it was in molarity, but you have to write its common number, formula mass. You have to find its formula mass. So number of moles of solute in formula mass. तो यहाँ पे इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे भी आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो लेने हैं, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करके लेना है, फॉर्मूला मास में कन्वर्ट करने के बाद लेना है. इन
1 liter of solution is known as formality, and it is denoted as F, capital F. तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं. पहले एक फॉर्मूला लिख लेंगे. फॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू W2 वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम मोलर मास ले रहे थे लेकिन यहाँ पे आपको क्या लेना है, फॉर्मूला मास लेना है. फॉर्मूला मास के हिसाब से कैलकुलेट करना है. सो वी विल राइट हियर एज फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. इफ इट इज, so let's see its first example to how to solve the numerical of formality. I'll write the question here. Suppose you have been given 32 gram of potash alum and dissolve it in 500 ml solution. Okay, so I have written the question. That is a hypothetical question according to my thinking. 32 gram of potash alum is dissolved in 500 ml solution. Calculate its formality. Okay, so you have to calculate its formality. So as I said, for calculating formality, you have to find formula mass. Now, how can we find the formula mass? For it, you have to find molar mass. Molar mass of potash alum. पोटैश एलम का पहले फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. K2Al2SO4 thrice, or it's K2SO4 dot Al2SO4 thrice dot 12H2O. ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. सपोज आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हो तो वो आएगा अराउंड 748. ठीक है, अगेन ये हाइपोथेटिकल है, हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे हो. सो टू कैलकुलेट फॉर्मूला मास, व्हाट यू हैव टू डू इज you have to find the common number between these formulas. In the molecular formula, you have to find common number. So we will write number of elements of each element here. देखो K कितने हैं, 2. एल्यूमिनियम कितने हैं, 2. SO4, एक SO4 यहाँ पे है और 3 SO4 यहाँ पे है, तो SO4 कितने हो गए, 4. H2O कितने हैं, 12. तो इन सब में से कॉमन नंबर क्या है, 2 कॉमन नंबर है. कॉमन नंबर को हम सिंबल देते हैं n, तो इसका n जो है वो 2 है. तो फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए आपको जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है उसको 2 से डिवाइड करना है. Okay, to find formula mass, you have to divide molar mass by the common number. That means it would be 748 divided by 2. It will be 374. As I said, this mass is hypothetical, so please calculate on your own basis and then calculate formula mass. Now these values will be put in this formula. F is equals to W2. W2 means how much solute you have taken. It is 32 gram. Divided by formula mass, it is 374. And volume, it is taken in ml, 500 ml. So you have to write 1000 to balance it. Okay, so the calculation will be your formality. You will
will be allotted the calculator over there, so you need to calculate and find the solution. Alright, so now we will move to fourth unit. Okay, so fourth unit is molality. Okay, the second one was molarity, R. Here it is molality, L. Okay, पहले इसकी define लिखते हैं. इसमें आएगा number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. Okay, molarity में था number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. यहाँ पे है 1 kg of solvent. It is denoted as small m. Okay, molarity capital M होता है, molality small m. Let's write down its formula. Formula will be W2 upon M2 and divided by 1 kg of solvent. So you have to write in kg, and for solvent we will write as W1. अब ये चीज आपको याद रखनी है कि जो नंबर 1 हम देते हैं वो हमेशा सॉल्वेंट के लिए देते हैं, नंबर 2 जो है वो हमेशा सॉल्यूट के लिए देते हैं. तो इस फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, W2 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट लेना, M2 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और 1 यानी सॉल्वेंट हुआ तो वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है, वो भी किस में, केजी में लेना है. और अगर आपको क्वेश्चन में ग्राम दिया हुआ है तो क्या करोगे, 1000 ऊपर लिखना है, W2 upon M2 into W1 and 1000 if it is in gram. So these are two formulas of molarity. Formality it is defined as number of gram equivalent mass dissolved in 1 liter of solution. Again you have to write it 1 liter of solution. मोलालिटी में हम सॉल्वेंट पे गए थे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पे, लेकिन फॉर्मेलिटी में वापस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ही है. चेंज क्या है यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट मास. हम ग्राम इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला रहेगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी. यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में एसिड दिया है तो आपको उसकी बेसिसिटी लिखनी है, और अगर बेस दिया है तो आपको उसकी एसिडिटी देखनी है. फॉर एग्जाम्पल, बेसिसिटी ऑफ HCl इज 1. HCl की बेसिसिटी 1 है क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है. अब ये एक हाइड्रोजन क्या कर सकता है, बेस के एक OH को न्यूट्रलाइज कर सकता है. बेस के एक ही OH मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 होगी. वैसे ही बेसिसिटी ऑफ H2SO4 will be 2 because it has 2 hydrogens, so it can neutralize 2 molecules of OH. That's why its basicity is 2. H3PO4 phosphoric acid, its basicity will be 3. Okay, here you have to remember that basicity of KMNO4 is 5.
ओके, इसमें भले कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन इसकी बेसिसिटी 5 है। क्यों? क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर सकता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करके 5 बेस के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको H देख के ही बेसिसिटी पता चले, कभी कभी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख के बेसिसिटी निकालनी होगी। सो KMnO4 की 5 होगी और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसकी बेसिसिटी 6 होगी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ये निकाला हुआ है, ये आपको याद रख लेना है। कहीं किसी क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो आपको बेसिसिटी KMnO4 की 5 लेनी है और K2Cr2O7 की 6 लेनी है। ठीक है, अब ये बेसिसिटी हुआ। एक एसिडिटी के भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। एसिडिटी ऑफ NaOH, इसकी एसिडिटी 1 होगी क्योंकि ये एक OH मॉलिक्यूल है, ये एसिड के एक H को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए इसकी एसिडिटी 1 होगी। CaOH ट्वाइस, इसकी 2 होगी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, इसकी एसिडिटी 3 होगी क्योंकि इसके पास 3 OH है, तो ये 3 हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। इसके पास 2 OH है तो 2 एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम एसिडिटी और बेसिसिटी निकालते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करके दिखाता हूं। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो मोलर मास ऑफ H2SO4, H2SO4 क्या एक एसिड है तो उसको इसकी बेसिसिटी से डिवाइड करोगे। मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 98 आएगा। बेसिसिटी कितनी है इसकी? 2, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 49। ठीक है, मतलब आपको ये 49 वैल्यू रखनी है इस फॉर्मूला में। ओके, फॉर्मूला फॉर्मेलिटी का आप लिख लेते हैं। F is equals to W2 upon ग्राम इक्विवेलेंट मास। GEM यहां पे क्या डिनोट करता है? ग्राम इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स में लेना है। अगर ml में लेते हो तो एज यूजुअल 1000 ऊपर रखोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटी का मास हो गया, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। इसमें आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाल के यहां पे वो वैल्यू रखनी है। ओके, W2 तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। GEM यानी ग्राम इक्विवेलेंट मास, ये आपको मोलर मास में से डिवाइड करके कैलकुलेट करना है, फिर वैल्यू यहाँ पे रखनी है। और वॉल्यूम ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इसके एग्जांपल्स हम करेंगे तब आपको ज्यादा डिटेल में नॉलेज आ जाएगा। अभी आज इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे 6th यूनिट पे चलते हैं। ओके, तो 6th यूनिट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। अब 6, 7, 8 ये तीनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मैं तीनों को साथ में पहले लिख देता हूं। 6th वन इज परसेंटेज वेट बाय वेट, W by W यानी वेट बाय वेट। 7th वन इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड 8th वन इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, अब आप लोगों को ये तो पता होगा कि परसेंटेज हम किस में से निकालते हैं? आउट ऑफ 100 निकालते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज आपको पता है कि 100 में से निकालते हैं। अब ऊपर वाला जो W होगा वो होगा सॉल्यूट का, और नीचे जो डिवाइड में है वो है सॉल्यूशन का। तीनों में ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से, क्योंकि परसेंटेज हम 100 में से निकालते हैं। तो देखो 6th वाला जो है परसेंटेज वेट बाय वेट, इसका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है तो हम 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है तो उसको हम कोई नंबर नहीं देते। सॉल्वेंट के लिए 1, सॉल्यूट के लिए 2, और सॉल्यूशन है तो कोई नंबर नहीं।
सो W2 अपॉन W और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला। सेवंथ वन इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो इसमें आप लिखोगे W2 क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट है, नीचे वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में कोई नंबर नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। एंड एट वन इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स V2 अपॉन V इंटू 100। सो ये 3 यूनिट भी आपके आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 यूनिट और समझेंगे। वो दोनों यूनिट जो है वो पार्ट्स पर मिलियन से रिलेटेड है, पीपीएम से रिलेटेड, एंड साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इन्हीं यूनिट्स पे बेस्ड। ओके, सो आज इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।